Hello students, how are you all? Hope all of you are well. Today we are going to discuss about the Bohr's model for hydrogen atom, and we will study ahead about this hydrogen atom's line spectrum and each and everything in detail. In the previous video, the last topic was this, but some of the students have just suggested me, sir, please make some animated video. First of all, let me tell you that what we are going to describe in this video. First of all, what are the Bohr's model for hydrogen atom? As in the previous video, already I had explained you about that Bohr's had explained the energy cells, orbits, right? So that's called principal quantum number. It's also called principal quantum number. In the Rutherford's atomic model, he had not described about the energy levels. So Bohr had firstly taken the same postulate about it, and he described about that there are some energy levels which revolves around the nucleus as in the form of K, L, M, M, or first energy level, second energy level, third energy level, fourth energy level, and it is denoted by the principal quantum number. N is equal to 1 for the first cell, N is equal to 2 for the second cell, N is equal to 3 for the third cell, similarly. Second, he had also described about what is the radius or radii of the hydrogen atom. Especially he had given for each and every energy levels. As for example, if I talk about the first energy level, so I have to just put here in the value of n, I have to just put 1. So he had just given the radii of stationary states of orbit, that what will be the 100% this atomic radii. So he had given the formula Rn is equal to n square a naught, where a naught is equal to 52.9 picometer. So as if we take about the hydrogen atom, so here we have to just put the value of n into 1. So here Rn is equal to, or R1, especially for the hydrogen atom, 1 square into 52.9 picometer. So it will be 52.9 picometer for hydrogen atom. After that, in the third postulate, he described about the energy of the stationary states. That what are the energy of the stationary state? He had given a formula En is equal to minus Rh into 1 upon n square, where Rh is equal to Rydberg constant. Its value is 109677 centimeter inverse, and here n is just like the number of orbits. So here we can take as in the form of integers. Secondly, he had also described the Bohr theory for ions containing one electron for hydrogen atom-like species. So he had given what is the ion containing energy for one electron. So he had given En is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into Z square upon N square, where Z is the atomic number of an atom and N is the number of orbits or number of energy levels. And in the last theorem, in the last postulate, he had described about the velocity of revolving electron in an orbit depends upon, means the velocity of an electron, how the electron revolves around the nucleus and what are the factors affecting it. So the first, he had informed about the positive charge on nucleus. How many charge is there? Positive charge is there on the nucleus. And secondly, he described about the principal quantum number. As in the formula you can see here, velocity is inversely proportional to principal quantum number. This is all the theory today we are going to describe. So first of all, let's see some animated video about this Bohr's model for hydrogen atom. As we will see the animated video, after that we will more discuss about this theorem and then we'll go ahead. So let's start the animated video of this theorem, that's Bohr's model for hydrogen atom. 1930 में नील बोर ने एटॉमिक मॉडल के बारे में एक्सप्लेन किया था, जो हाइड्रोजन एटम का क्या स्पेक्ट्रम होगा, और इसके कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फिक्स्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे बोर्स के पोस्टुलेट थे। अब पहला पोस्टुलेट है इसका, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट। जो एक हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से रिवॉल्व करता है, जो फिक्स्ड एनर्जी के रूप में रिवॉल्व करता है, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पे कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स होते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व करता है। ये सारी चीज़ें हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट्स में बोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट, कि कैसे कोई भी
मतलब न्यूक्लियस के अंदर में कोसेंट्रिक होकर के इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व करेगा ताकि उनका जो कोसेंट्रिक पावर है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का वो बना रहे, जिसमें उन्होंने कहा था कोसेंट्रिक पावर्स एंड सेकेंडली ही हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्टेशनरी स्टेट्स, राइट, कि मतलब कितने एनर्जी स्टेट्स है उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस के कारण ही उनको हेल्प किया जाता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण न्यूक्लियस से वो भिड़े हुए रहते हैं। सेकंड है फिक्स्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको, जब तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वह फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा, उसका एनर्जी लेवल फिक्स्ड है। यही था हमारा सेकेंड पोस्टुलेट बोर का कि जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से जंप नहीं करेगा, जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगा कि वापस वो जंप करना स्टार्ट कर देगा। देखो आप लोग यहाँ पे देखना कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो जंप करता है, राइट। देखो जैसे एनर्जी मिला वो हायर ऑर्बिट में जंप कर गया, और अगर उसमें से एनर्जी हटा देंगे तो वापस वह लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन एनर्जी है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट से किस तरह से सेकेंड एनर्जी लेवल में। अगर इस दोनों का एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 वही है। अब आ जाइए बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देख लीजिए कि आखिर बोर फ्रीक्वेंसी का रूल क्या है, कैसे उस एटम एनर्जी के अंदर फ्रीक्वेंसी किस तरह से डिनोट करेंगे। न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाई एच। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो वह लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट्स में जाएगा, और जैसे ही वहाँ से एनर्जी निकलेगा वापस वह हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में आ जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो बोर्स ने अपना फ्रीक्वेंसी रूल दिया था, ये जो चेंज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाई एच। डेल्टा E वही हो गया दोनों के फर्स्ट एनर्जी लेवल या सेकेंड एनर्जी, किसी भी एनर्जी लेवल में जब वो जंप करता है और वापस उस एनर्जी लेवल में आता है तो इस दोनों का जो डिफरेंस है उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, तो वही डेल्टा E अपॉन एच। एच जो है हमारा प्लांक कांस्टेंट है, डेल्टा E का मतलब हो गया जो हायर एनर्जी लेवल मतलब फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये था बोर्स का फ्रीक्वेंसी रूल। और h का प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगा, 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्या है h, प्लांक्स कांस्टेंट। अब इसका जो फोर्थ पोस्टुलेट था, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एक सर्कुलर में मूव कर रहा है उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, तो वो MVR होगा। जैसे हम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा मोमेंटम P इज इक्वल टू MV, चूँकि ये सर्कल में मूव हो रहा है इसीलिए इसका MVR होगा। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये VR, और ये इक्वल होगा NH/2π के। और ये N जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम, यही हमारा एनर्जी लेवल्स है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड। H जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये H/2π जो है वो सिर्फ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट के लिए है, लेकिन अगर NH/2π हम लोग लेते हैं तो मान लो कोई भी एनर्जी लेवल का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसकी बात करें तो इससे पहले बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम जाने से पहले कि आखिर इसने जो जो हमें बताया है, जो जो कंसेप्ट था, जो चारों इसके पोस्टुलेट थे, जो आप लोगों ने अभी देखा भी कि इसके चारों पोस्टुलेट कौन कौन से थे, जिसमें लास्ट पोस्टुलेट में इन्होंने बताया था कि इनका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसे हम लोग जानते हैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन, राइट। जैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेशन करता है और सन के एक्सिस पर रिवॉल्यूशन करता है,
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट है, न्यूक्लियस का वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो है उससे अट्रैक्टेड है, तो यहाँ पर जो ये एंगल से मूव करेगा तो वही है एंगुलर मोमेंटम हमारा। एंगुलर मोमेंटम जो होता है याद करो, हम लोगों ने 9th में पढ़ा भी था, P = mv, चूँकि यहाँ पे सर्कुलर में है तो और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर mvr = nh/2π। ये nh/2π कहाँ से आया, या अभी जस्ट हमने निकाला था कि यहाँ पे अभी जस्ट आपने देखा था डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी, राइट। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि h जो है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, n जो है हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एनर्जी लेवल्स है, और 2π है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम था, इसके चारों पोस्टुलेट्स क्या थे। अब जो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, अब सबसे पहले बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में कि बोर्स ने क्या दिया था। बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम में सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसके जो एनर्जी शेल्स है, एनर्जी लेवल्स है, एन अगर हम 1 लेते हैं, एन हम 2 लेते हैं, एन 3 लेते हैं, एन 4 लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ ऑर्बिट्स, कि आखिर ये ऑर्बिट का रेडियाई क्या होगा, तो Rn = n² a0, जहाँ पे a0 जो है 52.9 पिकोमीटर है, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं ऑर्बिट रेडियाई। अब आ जाइए हम लोग, कितना होगा इसका स्टेशनरी स्टेट्स, ये ऑर्बिट का रेडियाई कितना होगा, तो इसका जो एक्सप्रेशन था Rn = n² a0, ये Rn का मतलब रेडियस हो गया, n का मतलब कौन सा एनर्जी लेवल का, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी, और ये a0 जो है 52.9 पिकोमीटर जो है, ये किसी भी स्मॉलेस्ट रेडियस वैल्यू के बारे में है। अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा 52.9 पिकोमीटर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा। याद रखना, इसी रेडियस को बोर्स रेडियस भी कहा जाता है, 52.9 पिकोमीटर को। इनका जो स्टेशनरी स्टेट्स है और फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी, ये ऑर्बिट एनर्जीज के थ्रू दिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला En = -RH × 1/n²। RH जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है 2.18 × 10⁻18 जूल्स होता है, और n जो हमारा एनर्जी लेवल्स है। अगर हम n ऑर्बिट का निकालें तो कितना हो जाएगा, -13.6 / n²। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उसका n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो E1 = 2.18 × 10⁻18 × 1/1², दैट इज इक्वल टू -2.18 × 10⁻8 जूल। इसी तरह से आप फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी देख लीजिए, सबका अलग अलग वैल्यू है। फर्स्ट एनर्जी लेवल, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर हम इन्फिनिटी के लिए तो उसका एनर्जी लेवल 0 हो जाएगा। अब ये जो फिगर है आप जो देख रहे हो, इस फिगर को ध्यान से देखना, क्योंकि यही फिगर आपको जो है काम आने वाला है। देख लो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन को नया एनर्जी लेवल में जाना है तो वो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी इमिट करेगा, तो वो फिर वो निगेटिव, अगर वो नीचे आ रहा है मतलब एनर्जी इमिट कर रहा है तो निगेटिव साइन होगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में आपने देखा किस तरह से। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, किस तरह से मतलब सबका अलग अलग जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, सबके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब इसका जो एक्सप्रेशन है क्या हो, En = -RH × 1/n²। लेकिन अगर बोर्स थ्योरी फॉर आयंस कंटेन वाला करेंगे तो En = -2.18 × 10⁻18 × Z² Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और n क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
अगर आर एन की बात करें तो आर एन बराबर 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। अब हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे देख लीजिए सारे वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिएगा इस सबका वैल्यू जो है ज़्यादा निगेटिव हो रहा है और इसका रेडियस क्या होगा, छोटा होते जाएगा। बोर्स ने जो थ्योरी दिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आ जाइए, ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कैसे डिक्रीज करता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, राइट। अब देख लीजिए, सबसे पहले since Bohr's theory is not dependent upon the electromagnetic structure but it helps to resolve many questions related with the atomic structure and spectra, क्योंकि बोर्स का मॉडल जो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर आधारित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या स्पेक्ट्रा को ये सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि क्या सब बोर्ड मॉडल देता है, रदरफोर्ड मॉडल क्या सब दिया था और क्वेश्चन क्या क्या उसका एराइज हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, इस चीज़ को ध्यान से आप देख लीजिए, राइट। आंसर्स फॉर बोर्स मॉडल, सबसे पहले आपने क्या देखा, आपने अभी देखा कि उसने बोर्स ने क्या क्या आंसर्स फॉर बोर्स मॉडल में आपने देखा, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स बाय वर्च्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज व्हाई दे डोंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए टोटल याद करो वो क्वांटम मैकेनिक्स में मैक्सवेल का जो थ्योरी था, मैक्सवेल थ्योरी में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड में रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, अगर एनर्जी रेडिएट करता है तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर हेल्ड विद द स्टेशनरी ऑर्बिट्स बाय वर्च्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं जिस कारण से वो न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं। और दूसरा जो हमारे बोर्स साहब ने नहीं एक्सप्लेन किया था वो था कि आखिर द मॉडल ऑल्सो स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कोसेंट्रिक ऑर्बिट्स अराउंड अ न्यूक्लियस, द ऑर्बिट्स हैव अ स्पेसिफिक एनर्जी विच डिक्रीजेस और इंक्रीजेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कहने का मतलब हो गया ये मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन कोसेंट्रिक ऑर्बिट्स के बारे में भी ये बताते हैं कि न्यूक्लियस से किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ऑर्बिट किसी स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में भी बताते हैं, और दूसरा कोई भी एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी जाएगा ताकि वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फिर जंप करेगा। लेकिन ये सारे पोस्टुलेट जो है हमारे बोर साहब नहीं, रदरफोर्ड साहब नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने कहा कि कोई भी एटम कैसे स्टेबल होगा, स्टेबल नहीं हो सकता। क्यों स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एनर्जी गिर जाएगा और वो गिर जाएगा न्यूक्लियस में, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि आखिर बोर्स जो है किन किन मॉडल के एटम को एक्सप्लेन किया है, राइट। तो इस चीज़ को अगर आपने समझा कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन जो है कि मतलब उसके अंदर में नहीं गिरता है, जिस चीज़ के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, यही सबसे पहला था कि बोर्स ने अपने मॉडल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। दूसरा बात उन्होंने ये भी फिक्स किया कि आखिर कि एनर्जी का जो मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एनर्जी लेवल का रेडिया कितना होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल का रेडिया कितना होगा, ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। ओके, अब देख लीजिए इसका लिमिटेशन क्या सब था। सबसे पहले इमिशन और एब्जॉर्प्शन, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा, ये इसके लिमिटेशंस थे कि आखिर क्या इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बोर साहब ने जो एनर्जी का एक्सप्लेन किया थी, कैसे कोई फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकेंड, मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी फाइनल और इनिशियल में इन्होंने दिया था, राइट। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए कि इनका जो लिमिटेशंस है कि हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम, याद रखना इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये समझ जाइए, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन वाला न्यूक्लियस जब वह फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जाएगा तो मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका डेफिनेटली कलर भी चेंज होगा। वही हमारा हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो उसका एनर्जी चेंज होगा, उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये चीज़ आपने देखा, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम किस तरह से चेंज करता है। तो ये जो था मेन लिमिटेशंस था हमारा बोर मॉडल का। उसके बाद ये जो फाइनल और इनिशियल वाले एनर्जी लेवल्स थे उसके बारे में उन्होंने बताया था कि कैसे, कि आके देख लो यहाँ पे कि फाइनल और ये सेकेंड पोस्टुलेट था बोर का कि EF माइनस EI जो है एनर्जी का डिफरेंस, मतलब डेल्टा E इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, मतलब E2 माइनस E1, राइट। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी स्टेट्स का जो हमने देखा था En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n², राइट। यहाँ पर हमने देखा था कि RH का वैल्यू और n का वैल्यू अलग अलग दिया है। अगर हम डेल्टा E को लें माइनस RH/NF², n फाइनल कर दें माइनस इनिशियल, और डेल्टा E हो जाएगा माइनस RH/n फाइनल स्क्वायर माइनस RH/n इनिशियल स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन, यही रेडबर्ग ने अपने इक्वेशन भी एक्सप्रेशन यूज़ किया था। डेल्टा E इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये इनिशियल और फाइनल है। एब्जॉर्प्शन में देख लीजिए इनिशियल और फाइनल, इसीलिए यहाँ पर वो निगेटिव हो जाता है एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम में। अब देख लीजिए E इन्फिनिटी अगर ज़ीरो होगा तो किस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस तरह से वो लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रा गिरेगी। बोर्स मॉडल ने और बताया था कि आखिर इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है। E6 का वैल्यू, E5 का वैल्यू, 4 3 2 1, ये सारे वैल्यूज़ जो आपने अभी देखे थे किस तरह से ये एनर्जी लेवल के वैल्यूज़ हैं, राइट। यही वो फॉर्मूला था हमारा जो अभी हमने देखा। चूँकि यहाँ पर ये एनर्जी लेवल ज़्यादा जाता है इसीलिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ज़्यादा बनता है। और न्यू का फॉर्मूला भी हमने जस्ट निकलता डेल्टा E/H, जहाँ पे डेल्टा E का वैल्यू RH/H इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। और अगर वेवलेंथ आपको निकालना है, चूँकि वहाँ पे फ्रिक्वेंसी दिया हुआ, अगर वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ C/μ, राइट। अब जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ कितना एब्जॉर्ब करेगा, हाई नंबर ऑफ फोटॉन्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी। अब हाई इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर बोर्स एटॉमिक मॉडल में आप देख लीजिए कि जितना भी बोर्स का पोस्टुलेट है वो सारे एटॉमिक रदरफोर्ड का जो लिमिटेशंस था उसके बारे में था। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल में आ जाइए कि आखिर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रेजेंस ऑफ डबलेट ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया था। यहाँ पर ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में भी उन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड द ओरिजिनल लाइन स्प्लिट्स इनटू द 3। अब देख लीजिए यहाँ पर स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। फिर ये सारी चीज़ें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेव या एक पार्टिकल है, इसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया था। इसका मतलब एक दोनों नेचर इलेक्ट्रॉन का, वेव और पार्टिकल, इसके बारे में बोर साहब ने नहीं बता पाया था। अब किस तरह से ये रिवॉल्व करता है, एक्यूरेटली कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे बोर साहब नहीं बता पाए थे। ये सारे इनके लिमिटेशंस थे। ये जब आप समझ गए उसके बाद आ जाइए तो सबसे पहले आप देख लीजिए बोर्स मॉडल ऑफ
हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड अपॉन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। इसके जो कुछ यहाँ पे मेन पॉस्टुलेट्स थे, यहाँ पे देख लीजिए कुछ कुछ मेन पॉइंट्स जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स। दिस ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद द डिफिनिट एनर्जीज आर कॉल्ड एनर्जी सेल्स और एनर्जी लेवल्स। दीज आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 और K L M N, राइट। तो आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। सबसे पहले मैं आपको ये जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। Niels Bohr was first to explain the quantitatively the general features of hydrogen atom, that is the structure and its spectrum. He extended the work of Rutherford to give the structure of atom. Once the existence of the nucleus was proved through the Rutherford's model of atom, now the work left was to concentrate on the arrangement electrons around the nucleus. Niels Bohr was successful in answering the questions like why line spectrum of atom is obtained and the explanation of spectral lines of hydrogen atom. क्योंकि यहाँ पर जितना भी हमारे रदरफोर्ड साहब छोड़ चुके थे अपने, मतलब उनका जो लिमिटेशंस था, जैसे लाइन स्पेक्ट्रम एटम के अंदर कैसे ऑब्टेंड होता है, क्यों ऑब्टेंड होता है और कितने ऑब्टेंड होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे बोर साहब ने बताया था। बोर साहब ने सबसे पहले जानकारी दी न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम हैज़ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस एंड दिस पोस्टुलेट वाज रिटेंशन of Rutherford model only. Second, he had given the orbits information. The electrons around the nucleus revolves only in a certain fixed circular path of fixed radius and energy. These circular paths are also known as orbits, stationary states or allowed energy states or energy levels, right? जो कि यहाँ पे आप देख लीजिए इसका फर्स्ट पोस्टुलेट में यहाँ पे लिखा गया भी है, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पोस्टुलेट क्या है। उसके बाद इन्होंने बताया था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंगली इसका एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का नहीं चेंज होगा। अब इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो वीडियो आप देख रहे थे किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो सिर्फ only those orbits are permitted in which the angular momentum of the electron is a whole number multiple of h upon 2 pi, where h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम एज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. So therefore the orbits are called energy states or energy shells. Therefore the electrons when absorb energy move from lower energy level to higher energy level to its opposite electron moves from higher energy level to lower energy state by emitting energy. जैसे ही उसको एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाना होगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, फिर वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एनर्जी सेल से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में। लेकिन वैसे अगर उसको फिर डाउन आना होगा तो एनर्जी क्या करेगा, अपोजिट, मतलब अपोजिट जाना होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में जाना होगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट to the lower energy state by emitting energy. Thus we can say that energy of an electron only changes when it undergoes transitions from one energy level to the other, but while revolving in a fixed orbit they do not radiate or lose energy. In this manner Bohr overcome Rutherford's difficulty to account for the stability of atom. That's why electrons do not lose energy while revolving and fall into the nucleus. यही कारण है कि जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में नहीं गिर जाता है, कि फर्स्ट एनर्जी से सेकंड में या सेकंड से थर्ड में जाता है, जो हमारे बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है वह नहीं गिर पाता। इन द बोर मॉडल द लोएस्ट एनर्जी स्टेट अवेलेबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट एंड ऑल हायर एनर्जी स्टेट्स आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। इसमें जो मेन होता है, जो ग्राउंड स्टेट होता है, वो n इज इक्वल टू 1, मतलब सबसे लोएस्ट जो हमारा एनर्जी सेल है n इज इक्वल टू 1, वो हो गया ग्राउंड स्टेट। और उसके ऊपर में जितने भी हायर एनर्जी स्टेट है वो सबको हम लोग कौन सा स्टेट कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट्स। क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच, उसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन
एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट। वही कि मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को वन एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाना होगा तो उसको कितना फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएट या एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। वही डेल्टा ई जो है E2 माइनस E1। E1 हो गया एनर्जी ऑफ द लोअर अलाउड एनर्जी स्टेट एंड E2 हो गया एनर्जी ऑफ द हायर अलाउड एनर्जी स्टेट। ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल कहा जाता है। और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो लिखा हुआ है MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज एक्सप्रेस्ड बाय MVR इज इक्वल टू NH/2π वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। So from the above expression it was concluded that the permitted orbits are those for which the angular momentum of an electron is an integral multiple of NH means ये जो है NH जो आप देख रहे हो h/2π का वो इंटीग्रल मल्टीपल्स है, n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स है। From the above expression, the concept of quantized energy level is also clear. Therefore, this equation is also known as Bohr quantization postulate. क्या कहा जाता है इसको? Bohr quantization postulates. देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहता है तब तक वो या तो इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करता है और ना ही लूज करता है। As long the electron remains in a particular orbit, it does not lose or gain energy. This means that energy of an electron in a particular orbit remains constant. That is why these orbits are also called stationary orbits या stationary states। कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट रहता है, वो तो ना तो लूज करता है एनर्जी ना ही गेन करता है। मतलब आप खुद सोचो, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं मतलब मूव ही नहीं होगा। तो वैसे यहाँ पर है, कोई भी एनर्जी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ना तो वो एनर्जी गेन करता है ना ही एनर्जी लूज करता है। यही रीज़न है कि इसको स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा जाता है। गॉट इट? देखो, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए तो वो डेफिनेटली है जो वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, अगर फिर वापस उसी एनर्जी का अगर हम उतना एनर्जी निकाल दें तो वापस वह नीचे वाले ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, उसी को एच न्यू के रूप में डिनोट करेंगे। और तो न्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बाई एच। देख लीजिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए कि आखिर बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में क्या कहा गया है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड बोर्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब द क्वांटिटी कैनॉट वेरी कंटिन्यूसली टू हैव एनी आर्बिट्री वैल्यूज बट कैन चेंज ओनली डिसकंटिन्यूसली टू हैव सम स्पेसिफिक वैल्यूज। ये जो हमारे बोर साहब का हाइड्रोजन एटम है, इसी चीज़ पर बोर्स का एटॉमिक थ्योरी है जो आपने देखा था MVR इज इक्वल टू NH/2π। हम सब जानते हैं कि ये ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, कि कैसे MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो यहाँ पे 2πr इज इक्वल टू n लेमडा हम लोग लिख सकते हैं। अगर n जो है नंबर ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट जो है 2πr इज इक्वल टू n लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू h/mv, तो 2πr इज इक्वल टू n इंटू h/mv, तो MVR इज इक्वल टू NH/2π। यही रीज़न है, देयरफॉर ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल विच n इज इक्वल टू 1 2
3 4, यही हमारे बोर साहब ने दिया था। और बोर साहब का जो थ्योरी है, जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया, इस वीडियो के थ्रू बताया कि आखिर बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या था, इसका क्वांटाइजेशंस क्या है, ये सारी चीज़ को आप एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पे एक बच्चा जो नीचे उतर रहा है वो डिसकंटिन्यूसली उसका एनर्जी स्टेट चेंज होगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ से ये दो चीज़ को आप देखना कि आखिर इसमें किस में क्वांटाइज है और किस में क्वांटाइज नहीं है। ये जो सीढ़ी से लगातार उतर रहा था वो डिसकंटिन्यूसली उसका एनर्जी था, और यहाँ पर जो ये देख रहे हो आप स्लाइड से जो उतरा है इसमें देख लीजिए वो इजीली जो है कंटिन्यूसली उसका एनर्जी था, और इसमें डिसकंटिन्यूसली था, लैडर पे डिसकंटिन्यूसली और ये स्लाइड्स पे कंटिन्यूसली। यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया गया स्पेशली दिखाया गया था बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम्स के लिए कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी डिसकंटिन्यूसली या कंटिन्यूसली जाता है। तो इसी तरह से बोर्स मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है क्वांटाइज्ड है। बोर्स ने क्या बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उन्होंने हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट करने में बताया था। ई एन इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये क्या है, राइट? ये बोर्स ने बताया था कि कोई भी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सब वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए आप दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप इन सारे वैल्यूज़ को देख लो। इन सारे वैल्यूज़ में क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, e जो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, k जो है हमारा कूलम्ब लॉ कांस्टेंट। अगर इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सब वैल्यू डाल दोगे, देखो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, राइट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ई जो है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड, राइट? फिर वहाँ पर कूलम्ब लॉस कांस्टेंट, सब कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप डाल दोगे तो लास्ट में जो है ई एन इज इक्वल टू -1312 मतलब 1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल आएगा। गॉट इट? ये था मेन सक्सेस ऑफ द बोर्स मॉडल। बोर्स ने क्या दिया था, हाइड्रोजन एटम का रेडियस के बारे में भी बताया था। उन्होंने ये एक्सप्रेशन से बताया था, बोर्स गिव्स एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। किस तरह से हाइड्रोजन के अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसमें सबका वैल्यू आप देख सकते हो, और सब वैल्यू आपको पुट कर देना है, राइट? देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेस as the radius of the first orbit of hydrogen is equal to 0.529 angstrom. This is also known as Bohr's radius. बोर्स ने बहुत कोशिश की थी कि जितना भी हमारा रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाया था उन सारी चीज़ों के बारे में हमारे बोर साहब ने एक्सप्लेन किया। तो आपने देखा कि पोस्टुलेट में सबसे पहले उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया, दूसरा रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर जो ए नॉट का वैल्यू है। उसके बाद उन्होंने ऑर्बिट के बारे में बताया कि एनर्जी स्टेट्स कितना होगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने बताया था मतलब आयंस कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन जैसे स्पेसीज के लिए ई एन इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बारे में।
फिर उन्होंने रेडियाई का एक्सप्रेशन दिया आर एन इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। उसके बाद उन्होंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसीलिए वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया? तो यहाँ पे देख लीजिए जो जो पोस्टुलेट मॉडल है हमारा, इसका इजीली एक्सप्लेन किया गया है। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम में आप देख लीजिए किस तरह से बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट जो था कि कोई भी एटम जब ट्रांजिशन करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो एनर्जी का डिफरेंस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, राइट, वो किस तरह के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में होता है। जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है किस तरह से राइज करेगा, वो मतलब जिस तरह से ये चीज़ को आप देख लीजिए कैसे स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मेशन होता है जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जो जाता है। तो ये पांचों लाइन सीरीज जो आप देख रहे हो, ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज, ये सारे सीरीज जो है ये एक्सप्लेनेशन फॉर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। Bohr was successful in explaining the line spectrum of hydrogen. The spectrum is not continuous but discontinuous line spectrum because a finite amount of energy is emitted. क्या होता है कि एक निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, definite amount of energy is emitted when an electron moves from a higher energy state to a lower energy state, whereas a definite amount of energy is absorbed also. When electron moves from lower energy state to higher energy state, the difference in energy between the two energy state, जो अभी आपने जस्ट देखा था कि डेल्टा E इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, राइट, ई एफ जो है ई हमारा फाइनल स्टेट होगा मतलब हायर एनर्जी स्टेट, और ई आई जो है इनिशियल मतलब ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। वहाँ पे जो आपने देखा था थर्ड पोस्टुलेट में ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n²। तो उसी तरह अगर हम ई फाइनल निकालें तो माइनस आर एच इंटू 1/nf², और ई इनिशियल निकालें तो माइनस आर एच इंटू 1/ni²। इस दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर एच एन एफ स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर। तो डेल्टा ई हमारा क्या हो जाएगा, आर एच हम लोग जो कॉमन ले लेंगे 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो आर क्या है हमारा, आर एच जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। तो डेल्टा ई जो है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल हो जाएगा, और इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। आई का मतलब इनिशियल, एफ का मतलब फाइनल। ड्यूरिंग द एनर्जी स्टेट दिस ट्रांजिशन एनर्जी रेडिएशन इज इमिटेड विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ई इज इक्वल टू एच न्यू, जो हमारा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के से है, और डेल्टा ई जो है एनर्जी गैप है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एच न्यू, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन एच, और डेल्टा ई का वैल्यू हमने निकाला आर एच इंटू 1/n1 मतलब एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, राइट। तो अभी आप जो देख रहे हो ये जो एनर्जी स्टेट्स है बोर्ड्स ने किस तरह से बताया था, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट किया गया है। आप देखो यहाँ पर देख लो, लाइमन सीरीज में देख लो, हायर ऑर्बिट्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, देखो दिख रहा है आपको, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्टेन हो गया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को वहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो लाइन, ये इसी तरह से ये स्पेक्ट्रल लाइन से यहाँ पे ऑब्जॉर्व होता है। अब देख लो बाल्मर सीरीज में हायर ऑर्बिट्स टू सेकेंड ऑर्बिट, याद रखना लाइमन सीरीज हायर ऑर्बिट्स टू ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट एनर्जी, और बाल्मर हायर टू सेकेंड एनर्जी स्टेट। ये भी अल्ट्रा वायलेट रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तरह किस तरह बताता है, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए। अब ये पास्चन में देख लीजिए, थर्ड में जाएगा, लाइमन हायर टू फर्स्ट, बाल्मर हायर टू सेकेंड, पास्चन हायर टू थर्ड, ब्रैकेट हायर टू फोर्थ एंड पीफंड हायर टू फिफ्थ। अब देख लीजिए ब्रैकेट सीरीज का, हायर से फोर्थ में जब आएगा तो ब्रैकेट सीरीज ऑब्टेन होगा, राइट। अब आ जाइए पी फंड सीरीज, हायर से कब आएगा, फिफ्थ ऑर्बिट में। तो देखा आपने
किस तरह से ऑब्टेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है एच न्यू इज इक्वल टू वही एन आई इनिशियल और एन एफ मतलब एन फाइनल, राइट। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि डेल्टा ई जो होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल से हमारा जो वैल्यू निकला था उसमें हम लोगों ने अभी जस्ट बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है डेल्टा ई अपॉन एच हो जाएगा, और डेल्टा ई का वैल्यू कितना है हमारा देख लीजिए वहाँ पर, डेल्टा ई का वैल्यू हमारा है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। तो ये चीज़ जो आपने देखा अभी, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन फॉर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे बोर साहब ने दिया था। बोर साहब ने जो फॉर्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, इसमें ई एफ का वैल्यू निकाला, ई आई का वैल्यू निकाला, दोनों को माइनस करके डेल्टा ई का वैल्यू निकल गया 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। ई इज इक्वल टू एच न्यू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से अगर ई को हम लोग डेल्टा ई के मतलब एनर्जी गैप का निकाले तो एनर्जी गैप भी हो जाएगा एच न्यू, राइट। और ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच हो जाएगा, और डेल्टा ई का वैल्यू हमने निकाला अभी आर एच इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, तो माइनस आर एच अपॉन प्लांक्स कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर। तो इस तरह से हम हर सीरीज का निकाल सकते हैं, लाइमन का, बाल्मर का, पास्टन का, ब्रैकेट का, पी फंड का। एन इनिशियल में अब कैसे वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, यस। वेव नंबर याद करो क्या होता है, वेव नंबर 1 अपॉन लेमडा जो होता है, तो उसी तरह से ये न्यू अपॉन सी हो जाएगा, तो न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच अपॉन एच सी इंटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये सारा वैल्यू जब आप पुट करोगे यहाँ पे तो 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर कराएगा। और जब ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है हमारे बोर्ड्स ने दिया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। अब आ जाइए ब्राइटनेस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, कि कैसे ये ब्राइटनेस या स्पेक्ट्रल लाइन्स डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड। ये सारा चीज़ जो आज हमने पढ़ा है, इसको आप लोगों को सबसे पहले तो नोटबुक में लिख लेना है। नोटबुक में लिखने के बाद इसके ऊपर में मैं न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, जो आपको सबसे पहले समझ के बनाना है। और जो कुछ भी आपको होमवर्क मिल रहा है उसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। अगर नहीं होगा सॉल्व, नॉट एन इशू, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी जो आपने देखा ये सारा बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने आपके डिमांड पर ये वीडियो एनिमेटेड वाला मेरा अपना फॉर्म मैंने सब कुछ दिखाया, इसलिए आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है एटलीस्ट नोटबुक में लिखो, सॉल्व करो, एनसीईआरटी का PDF डाउनलोड करो और उसके तहत आप इस चीज़ को बढ़िया से बनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं क्या अच्छा नहीं लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।